गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज पीरियड 4 क्लास इंग्लिश लैंग्वेज डेट प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस एंड इट्स काइंड। टुडेज टॉपिक इज डिस्कर्सिव पैसेज क्या है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। डिस्कर्सिव पैसेज मीन्स होता क्या है, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस पर। जिसको कंप्रेहेंशन पैसेज कहते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज जिसका डिस्क्राइब किया जाए, ऐसे पैसेज को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करने होंगे। ये पहला क्वेश्चन इसमें आएगा स्किल राइटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। क्योंकि आप पैटर्न यूपी बोर्ड का सेम सीबीएसई पैटर्न पर हो गया है, तो इसमें पेपर पैटर्न भी आपका चेंज हो गया है। तो पहले हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसमें क्वेश्चन राइट करेंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन देंगे और इसके बाद आपको ये आंसर फाइंड आउट करने होंगे। तो इसमें पहला जो है पैसेज आप रीड करें। बर्थ ऑफ a free and healthy individual is not possible in a condition wherein the name of education all sorts of salvaries are nourished. The root causes for the ugliness of humanity are hidden in our education. The present education system has cut man off from nature and has not been able to given birth to any refinement, to any culture. Instead, it has given birth to unnatural life. Every generation goes on imposing this unnaturalness on the next generation. I would like to look at education. I would like to draw your attention to the fact which can be seen only by looking directly at the problems. Is it not possible to see life directly? The present education system makes the mind of a person hardened, complicated and old. 100-year-old mind deprives a person of the knowledge, joy and beauty of life. The body is bound to become old, but not the mind. Mind can always remain young till the very last moment of death. And only such a mind can know the mysteries of life and death. But the present education system makes the mind old. It does not awaken the mind, but stops it, and so it becomes old. Feeding thoughts means feeding memory. It does not spark thinking or intelligence. Memory is not intelligence. Memory is mechanical. Intelligence is consciousness. Thoughts are not to be given to you. In fact, thinking is to be generated in you. Discipline imposed by others is also a slavery. This kind of discipline is falling apart everywhere, and this has created an anxiety. Education should be free of the outside imposition of discipline.
It should awaken the dormant intelligence of individuals. Such intelligence becomes self-discipline. In such a life, there is neither suppressions nor heaviness. When life is progressing through the light of one's own intelligence, there is no possibility of uh, coerce and licentiousness. Educations can definitely lay foundation which can make man free. We want a man who is rooted in freedom and intelligence in him. There is a hope and there is a future. What have the methods of discipline achieved? Discipline has given stupidity and lifelessness to man. A disciplined person is bound to be rigid. The more rigid he is, the more disciplined he will be. Education is not meant for teaching discipline, but for developing one's own intelligence. Whatever discipline results from intelligence, that alone can bring goodness and benedictions. Because such discipline cannot be exploited, it can be made an instrument for violence and war in the hands of priests and politicians. ये थी ये पैसेज है, पैसेज के बाद इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं राइट कर रहा हूँ, वेयर आर द रूट, वेयर आर द रूट causes for the ugliness of humanity hidden, HIDDEN hidden। उसमें चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका बिहेवियर है। सेकंड ऑप्शन में आपका दिया गया है एजुकेशन। थर्ड ऑप्शन आपका है, इसमें दिया गया है थॉट, THOUGHT। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें एक्शन है, ACTION एक्शन। नेक्स्ट इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज द प्रेजेंट एजुकेशन। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक सही है, आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट हैज द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम done to man। ये आपका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से दिया जा रहा है, ध्यान से देखना है आपको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका इसमें दिया गया है, इट हैज कट मैन ऑफ फ्रॉम नेचर। थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया गया है, इट हैज कट one person from other। थर्ड ऑप्शन इसका दिया गया है, थर्ड ऑप्शन है इट हैज कट
It has cut a man from his relatives. RELATIVES, relatives. और लास्ट ऑप्शन है all of these. All of these. इसमें से आपको ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा गलत होगा ये आपको समझना है। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है द प्रेजेंट एजुकेशन system makes the mind of a person. The mind of a person. ये क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शंस में दिए गए हैं। देयर आर फोर ऑप्शन। पहला है बर्डन, BURDENED। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ओल्ड, और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑल ऑफ दीज। इसके बाद ये आपका फोर्थ क्वेश्चन इसी में आ रहा है, इसको आप राइट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज burdened and old mind deprived a person of ये क्वेश्चन है। इसके भी यहाँ पर देयर आर फोर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नॉलेज, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इसमें जॉय, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ब्यूटी ऑफ लाइफ, और लास्ट ऑप्शन जिसे फोर्थ ऑप्शन है इसमें लिखा गया है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट अ वर्ड from the passage similar, यानी उसी तरीके से समान है ना, in meaning to relentless, relentless। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE। सेकेंड ऑप्शन है रिजिड, RIGID। थर्ड ऑप्शन है MONOTONOUS। फोर्थ ऑप्शन है
कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ये आपके ऑप्शन हो गए। 6 क्वेश्चन है। फीडिंग थॉट्स मीन, फीडिंग थॉट्स मीन्स, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फीडिंग मेमोरी, फीडिंग मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन है फीडिंग बिहेवियर, इसका सेकेंड ऑप्शन है फीडिंग बिहेवियर। थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। और लास्ट जो ऑप्शन है फोर्थ, इसमें है नीदर फर्स्ट ना सेकेंड, यानी नीदर ना तो पहला है और ना ही दूसरा है, नीदर फर्स्ट ना सेकेंड। तो पहला तो पहला है और दूसरा है, इसमें बोथ पहला और दूसरा है, इसमें फीडिंग और बिहेवियर है, पहला में फीडिंग मेमोरी। इसमें से ऑप्शन आपके दिए गए हैं और ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें से एक ही आंसर इसका सही जा रहा है, अदर जितने भी हैं वो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज, अब इसमें डैश दिया गया है, इसके ऑप्शन आपको कंप्लीट करने हैं। पहला है मैकेनिकल, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है मैकेनिकल, MACHANICAL, मैकेनिकल। सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया गया है मेमोरी, MEMORY। और थर्ड ऑप्शन इसका है, थर्ड ऑप्शन इसका दिया है कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS। और फोर्थ ऑप्शन इसका दिया जा रहा है डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। ये इसके ऑप्शन हो गए, ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन सिस्टम should be, education system should be free, free of the outside, of the outside, outside imposition of, imposition आप, ये क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही दिया गया है, अदर जितने भी हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं, जो सही होगा वो लिखेंगे। पहला है डिसिप्लिन, DISCIPLINE। सेकेंड ऑप्शन एजुकेशन शुड बी, हाँ इसमें कॉन्शियस है, थॉट है, मेमोरी है, कॉन्शियस थॉट मेमोरी, यही सेम ऑप्शंस में दिए गए, ऊपर दिए गए। कॉन्शियस CONCIOUS, कॉन्शियसनेस, और थर्ड ऑप्शन थॉट और मेमोरी। थर्ड ऑप्शन का दिया गया है थॉट और लास्ट ऑप्शन है मेमोरी, MEMORY लिखा गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है इसका आर डिसिप्लिन पर्सन इज बर्न टू बी। 9 क्वेश्चन है। आर डिसिप्लिन पर्सन PERSON is bound to be। इसमें पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल FLEXIBLE। सेकेंड ऑप्शन रिजिड RIGID। थर्ड ऑप्शन इसका दिया गया है स्टूपिड STUPID स्टूपिड। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है 10 नंबर। आप इसे लिखिए, देखिए, समझिए। 10 नंबर दो क्वेश्चन और बच जा रहे हैं और टोटल इसमें कौन दिए गए हैं। व्हाट इज एजुकेशन मीन फॉर। व्हाट इज एजुकेशन मीन फॉर, यानी एजुकेशन का मीन्स क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इट इज नॉन टू फॉर डेवलपिंग वंस ओन इंटेलिजेंस। फॉर डेवलपिंग one's own intelligence, स्वयं के ज्ञान की वृद्धि होना। स्वयं के ज्ञान। नेक्स्ट है फॉर डेवलपिंग वंस ओन मेमोरी। फॉर डेवलपिंग one's own memory, याददाश्त में वृद्धि होना। और तीसरा है फॉर डेवलपिंग वंस ओन थॉट, यानी अपने विचारों में वृद्धि होना। फॉर डेवलपिंग one's own thought, THOUGHT। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। ये लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये आंसर हो गए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन 2 और बचे हैं आपके, वो भी आपको कंप्लीट अभी मैं लिखे दे रहा हूं, आप कंप्लीट कर लें। व्हाट रिमेन्स, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट remains always young till the very young till the very last moment of death, last moment of death, यानी मृत्यु के अंतिम क्षण तक। ये क्वेश्चन का आपका इसके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एज पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन माइंड और थर्ड ऑप्शन इसका दिया गया है मेमोरी, यानी याददाश्त। और लास्ट ऑप्शन इसका है थॉट, विचार। ये ऑप्शन लास्ट इसका क्वेश्चन है 12। इसको समझ ले। व्हाट मैसेज has been conveyed, CONVEYED, conveyed through the passage, conveyed through the passage।
through 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 the passage। इसके भी ऑप्शन नोट कर लें। फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड ऑप्शन इसका है एजुकेशन इज मीन का, एजुकेशन is meant for developing intelligence, next है discipline is not necessary in life, discipline is not necessary in life, जीवन में अनुशासन आवश्यक नहीं है। It is impossible। लास्ट ऑप्शन इसका दिया गया है मेमोरी इज नॉट, मेमोरी MEMORY, memory is not intelligence, INTELLIGENCE। ये ऑप्शन आपको ये कंप्लीट करने हैं और ये आपको फेयर वर्क में आपको कंप्लीट करना है और सेंड करना है। ओके, थैंक यू वाला।